Good afternoon, everyone. Hello, welcome to our day 6 now. We'll be starting our session at exact 4:30. Okay, so for now, just let me know. Am I audible for you? Am I still visible for you? Christian, the screens are run basically clear. Audio is proper. Yep. Okay. Till we have to कोणाला काही डाऊट आहे आतापर्यंत कोण सांगितलं टेक्निकल you guys have regarding cyber security. काही डाऊट काही प्रश्न ऍड ऑन विचारायचं. Have 2 minutes. You can unmute yourself and let me know. Okay, so shall we start our session? So please start करायचं असेल. Can we start? So yep, welcome to our day of internship from the Simply Square Technologies. So in this session, we'll be learning about incident response and security operatives. जसं आपण काल बघितलं होतं की इन्सिडेंट रिस्पॉन्स एक लास्ट टॉपिक होता. तो कसा रिस्पॉन्स केला जातो. बहुधा थ्रेट मॅनेजमेंट इज डन. म्हणजे सर्व अटॅक्स वगैरे आपल्यावर परफॉर्म झाले त्यावेळी आपण कसं रिस्पॉन्स करायला हवं ते पण आज या सेशनमध्ये बघू. सो शुड वी स्टार्ट. जस्ट लेट मी नो इन चॅट बॉक्स. फटाफट ऍक्टिव्ह आहे की नाही समजेल मला. Yes. Okay. So let's start. Okay. So yep, today's agenda is about understanding incident response framework and security operative centers. Security operative centers मध्ये एक जॉब रोल असतो जो आपण म्हणतो सॉक सिस्टम analytics soft role असेल. It's a basic आपण म्हणू शकतो फ्रेशर or entry level role for cyber security professionals. Cyber security professional start करायचं आहे in the frame of job. तो हा पहिला रोल असतो सॉक आपण त्याला म्हणतो. Then you have third one that is continuous monitoring. We'll be learning about a continuous monitoring. And fourth one of incident handling process. Incident कसा handle केला जातो. By the conclusion of this session, you will have through understanding of how to establish effective incident response capabilities and maintain the robust security operations to protect your organization digital assets. So we'll be starting our first slide. That is what is incident response. I'll just go with quick audio and visual check. Am I clear for you guys? Is there anything that's picking up from my side? Picking up from my side. Am I clear? Great. So yep, we'll be understanding what is incident response. Incident response is nothing but an organization approach to addressing and managing the aftermath of a security breach or a cyber attack, with the goal of limiting damage and reducing recovery time and cost. Incident response म्हणजे काय? अशा प्रकारचा एक रिस्पॉन्स असतो
जेव्हा आपल्यावर सायबर अटॅक परफॉर्म केलेला गेलाय, ठीक आहे, हे अटॅक झालेला आहे चालू आहे, मग त्यावेळी एक टीम असते जी इन्सिडेंट रिस्पॉन्सला रिस्पॉन्स करते, ज्या ठिकाणी त्यांचा गोल असतो की कमीत कमी डॅमेज असायला हवं, त्यानंतर जी कॉस्ट असते ती कमी करायची आणि टाइम कमीत कमी कसा लागेल सगळं रिकव्हरी करायला, त्याला आपण म्हणतो इन्सिडेंट रिस्पॉन्स. समजलं सर्वांना? सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सिक्युरिटी इन्सिडेंट्स. त्याच्यामध्ये काही टाइप्स ऑफ इन्सिडेंट्स आहेत सिक्युरिटीमध्ये. फर्स्ट वन दॅट इज ऑफ मालवेअर इन्फेक्शन्स, म्हणजे की मालवेअरमध्ये इन्फेक्शन जे असतात ते, that we have done ransomware, Trojan, viruses, etc. Then even another access account compromises, data breach, information leakage, denial of service attack जो आपण DOS किंवा एक त्याचा ऍडव्हान्स व्हर्जन असतो DDoS, distributed of denial of service attack. Then we have insider threat जो आपण बघितला होता काल आणि परवा 2 दिवस. इन्सिडर थ्रेड बद्दल मी बोललो, इन्सायडर थ्रेट्स जो malicious असतो किंवा negligent असतो. Then you have physical security incident. Physical security incidents from our physical assets, basically. त्यांना पोचलेला असतो किंवा थ्रू फिजिकल डॅमेज, फिजिकली vulnerability. Keylogger big kind of hacking system device that cause our system to be vulnerable to our keyboards to props. Then we have physical and social engineering attacks that we have done in our day 2 social engineering attack, day 3 sorry, day 3 social engineering attack. ओके, कोणाला काही डाऊट यामध्ये? Is there any doubt in this session, in this slide? काही डाऊट आहे गाईस कोणाला यात? जस्ट लेट मी नो. Okay, I think no doubt. Okay, great. Thank you, Fisher, for telling me. जर बाकीच्यांना समजत नसेल माझा आवाज येतोय का नाही माहिती लावून सोडून. ओके, नो वरी. देन आवर नेक्स्ट इज बिझनेस इम्पॅक्ट ऑफ पोर इन्सिडेंट रिस्पॉन्स, म्हणजे की बिझनेसवर पडणारा इम्पॅक्ट काय आहे आपण जर प्रॉपर इन्सिडेंट रिस्पॉन्स नाही केला तर. ठीक आहे. So our business impact on poor incident response is first one, that is extended downtown and business disruption. म्हणजे की आपल्या बिझनेसला तो एक रेग्युलेटरी लोअर हँडला आणतो. इट कॉस्ट अवर मनी, टाइम अँड रेप्युटेशन. थ्रोली अगर आपली जर सर्व्हिस कंपनी असेल तर विल गेटिंग द इम्पॅक्ट ऑफ लिगल लायबिलिटी अँड पोटेन्शियल लॉसेस. म्हणजे की तुम्ही जर कोणाला कोणत्या कंपनीला सर्व्हिस प्रोव्हाइड करताय, लाईव्ह सर्व्हिस, आणि तुमच्या त्या प्रॉब्लेममुळे दुसऱ्याची सर्व्हिस इंटरप्ट होते हे, सो दे हॅव राईट्स टू गिव्ह यू अ लिगल लायबिलिटी, से नोटीस वगैरह केस वगैरह. ठीक है. Then yep, we'll go towards NIST, that is NIST Incident Response Life Cycle. बेसिकली NIST असतं काय? NIST ला आपण म्हणतो नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्टँडर्ड अँड टेक्नॉलॉजी. ठीक आहे. NIST म्हणजे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, स्टँडर्ड अँड टेक्नॉलॉजी, टेक्नॉलॉजी इन्सिडेंट रिस्पॉन्स लाईफ सायकल, म्हणजे की NIST वाल्यांनी जी रिस्पॉन्स सायकल बनवली आहे, फॉर दॅट विल बी गेटिंग टू नो इन दिस. सो पहिलं असतं प्रिपरेशन, दॅट इज ऑलवेज प्रिपेअर फॉर द थिंग. मी कालच्या एक लेक्चरमध्ये बोलत होतो एक टॉपिक म्हणून की डोंट ट्रस्ट एनीवन, व्हेरीफाय एव्हरीवन. बरोबर, कोणावरच कधी ट्रस्ट करू नका इन द सेक ऑफ सायबर, फॉर दॅट पर्पस. सो यप, then we have establishing incident response capabilities through policy deployment, development, team formation, tool deployment and training. म्हणजे की प्रिपरेशन कसं केलं पाहिजे? प्रिपरेशन करताना पहिले एक प्रॉपरली इस्टॅब्लिश करा कॅपेबिलिटीज काय आहेत. ठीक आहे. त्यानंतर आपले पॉलिसीज जे असतात गव्हर्नमेंटचे असो, जे आपण सिक्युअर रेग्युलेटरी करतात ते. देन वी हॅव अवर policies towards the organization policies के हिसाब से करिए. Then we have a team formation. We should build a team. हमने एक टीम बनानी चाहिए. Then we have tool deployment, म्हणजे की जे आपण टूल बनवले त्यांना डिप्लॉय करायचं. And for that we need to give a training, मतलब कि हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है. ठीक है. For that
create a response plan and procedure. We need to create a response plan and procedure for that. Then we have next, that is our second point, that will be calling as detection analysis. Or that their goal is to detect possible incident, analyze them, म्हणजे की that we have to detect a possible incident that could be possible, analyze them and determine the scope and impact. That means what will be the scope and the impact on our system or on our organization. For that, their sources could be a system log. We can have that analysis from our system logs, security alerts. I also told you from the antiviruses, user reports, external threat intelligence. They can be categorized, right? For example, like malware, DOS, insider threats, unauthorized access. Also. Okay. So key concept of this is normal that accurate and timely detection minimize damage. Okay. Are you getting my point? What I'm seeing to say you. तुम्हाला समजतंय? Properly समजतंय? Okay. Then you have containment, detection, and recovery. Okay. So for that, our goal is to limit damage. जो डॅमेज कमीत कमी आपण करू शकतो त्याला कमीत कमी करायचं. देन योर नेक्स्ट दैट इज अवर इलिमिनेट द थ्रेट. म्हणजे कि जो थ्रेट है, जो हमारा थ्रेट है, उसको इलिमिनेट करना है, उसको मतलब निगलेक्टली न्यूट्रलाइज करना है. देन योर थर्ड पॉइंट दैट इज रिस्टोर नॉर्मल ऑपरेशंस. It means to the threat that have been come to our system. We need to normalize our system from that. रिस्टोर करे जो थ्रेट आया था हमारे सिस्टम. फॉर दैट वी हैव फोर्थ, मींस हमारे पास चार अलग अलग तरह के इसमें थे. फर्स्ट वन वी हैव कंटेनमेंट, दैट इज also the part of balance between service disruption and stopping the threat. Containment म्हणजे काय? It is a balance between service disruption and stopping the threat. Then we have redirection, that is remove malware, backdoors, unauthorized users or corrupted data. We should always remove malware, backdoors, unauthorized users or corrupted data from system to identify root cause to prevent recurrence. तो बार बार वो चीज होनी नहीं चाहिए, उसके लिए वो करते हैं. Then we have recovery. Recovery means what? To restore system from clean backups. जो हमारा बैकअप प्लान होता है उससे फिर से जो डेटा होता है क्रुशियल वो फिर से बैकअप लिया जा सकता है, या बैकअप लेना है. सो दैट वाज द पार्ट कंटेनमेंट, इटरेक्शन एंड रिकवरी. आई जस्ट टेल यू वन्स अगेन. कंटेनमेंट म्हणजे काय? डॅमेजला कमी करना, या हम बोल सकते हैं कि सर्विस डिस्ट्रप्शन एंड स्टॉपिंग द थ्रेट, इसके अंदर बैलेंस होना चाहिए. देन योर इटरेक्शन, दैट मीन्स रिमूव मालवेयर वगैरह जो होते हैं वो सबको रिमूव करो. एंड रिकवरी मीन्स बैकिंग अप द डेटा फ्रॉम क्लीन बैकअप्स. ओके, समझ गया सबको? इज देयर एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? Then we have post incident activity. It's most crucial part. Post incident activity is for the learn from the incident to improve future responses and prevent risk recurrence. मतलब कि क्या? जो भी हमने अटैक हुआ था हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे, इससे प्रॉपर सीखो और उसको और बेस्ट बनाओ. मतलब उसको किसको? इंसिडेंट रिस्पॉन्स को. दैट मीन्स वी हैव टू फैक्टर्स इन दिस. पहला है जो चीज हुई है पास्ट में उसको प्रॉपरली स्टडी करके उसके ऊपर सिक्योरिटी मेजर्स अप्लाई करो. सेकेंड वन, व्हाट वी नीड टू डू इफ दिस टेकन प्लेस अगेन, टुक प्लेस अगेन. ठीक है, अगर कुछ हुआ तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे बेस्टली एनालाइज करना पड़ता है. सो हियर वी कैन कंडक्ट लेसन लर्निंग मीटिंग्स एंड वी कैन हैव डॉक्यूमेंट इन डिटेल. ठीक है, देन वी हैव अपडेट प्रोसीजर एंड कंट्रोल्स. ठीक है, इज देयर एनी डाउट in this slide, that is this incident response life cycle? This is in mode. Okay, great. We'll be heading to our next topic, that is incident response team structure. Lucky incident, how should be the response team? So what were the ranks that could be probably given or rule?
and role-based work to the incident response team. That is the structure. First, we have incident commander who is commanding all the situation, all the responses. He is responsible for makes a critical decision, manage resources, and communicate with stakeholders. Then we have HR representatives. They help us out to manage a personal aspect, handles insider threats, enforce policy, and handles employee communications. Then we have third one, that is legal counsel. Counsel. That is most crucial part in our incident response team that provide legal guidance. मतलब वो हमें legal guidance provide करते हैं और वो ensure करते हैं कि जो जो regulatory compliances है उसके एक specified country या continent के हिसाब से that you are following and manage legitimate risks and advice of evidence handling. जो हम एक end of the incident handling करते हैं evidence का वो properly हो बताते हैं कि कैसे करना है कैसे. ठीक है. Then we have third one, that is security analyst. Security analyst is the person who perform a technical analysis, do forensic investigation, and do a log examination and evidence collection. वो ऐसा बंदा होता है जो टेक्निकल एनालिसिस करता है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेट करता है. फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेट मतलब जो इंसिडेंट हो गया उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना. ही आल्सो एग्जामाइंस द लॉग एंड आल्सो कलेक्ट द एविडेंस. ओके. Then we have communication leads, that is manage internal updates, media relations, customer communication and regulatory notifications. मतलब कि वो समझ लो he is a person or he or she is a person who communicate between company and external team. जो external team हो सकती है that could be probably legally, unlegally, or we can say that a team like a media, right? Customer executives. So center part is in our organization who connects to our external persons over the organization. Okay, got it. Then we have IT operation leads. They handle technical containment and system restoration, even though the infrastructure repair and operation recovery. मतलब उनका काम होता है सब टेक्निकल चीजें संभालना, सिस्टम को रिस्टोरेशन भी करना. उसके बाद जो चीज खराब हो रही है इन द सेक ऑफ आईटी डिपार्टमेंट के पास जो होता है आईटी डिपार्टमेंट का हेड होता है. ठीक है. समझिए इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम कैसे होती है. डू यू हैव एनी डाउट इन दिस? नो. Then you have this, that is incident classification and prioritization. मतलब कि क्या वहां पे एक चीज होती है, इंसिडेंट विल बी क्लासिफाई एंड प्रायोरिटाइज. मतलब जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इंसिडेंट उसको रिस्पॉन्ड करो, उसको क्लासिफाई किया जाए थोड़ी थोड़ी चीजों में सो दैट वी कैन रिस्पॉन्स, या फिर हम बोल सकते हैं उसके ऊपर हम एक्शन जल्दी ले सकते हैं. वी कैन टेक अवर डिसीजन एज सून एज पॉसिबल एज द टीम गेट्स एक्सेप्टेड और एग्जीक्यूटेड देयर कोर्स ओवर देयर. So for that, we have several severity levels. सबसे पहला है सबसे हाई जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल. हायर है, नॉट हाई, हायर. सेवेरिटी लेवल 1 बोलते हैं. फॉर दैट वी नीड टू हैव एक्टिव डेटा ब्रीच और एक्सप्लॉइटेशन. तब ऑर्गेनाइजेशन पे एक्टिव डेटा ब्रीच हो रहा है उसके लिए होता है उसमें. Then we have second round, widespread ransomware infection. We have a widespread ransomware infection, मतलब हमारे सिस्टम के ऊपर वाइडली स्प्रेड हो रहा है. Then we have third one, that is critical system compromise. For that, in this there is a thing that is we need to respond in 15 minutes, whereas full team activation execution is required for the notification. Then we have second one, that is high, that's severity level 2. In this we need to have localized malware infection. It comes under localized malware infection. Second, it comes unauthorized privilege access, significant service disruption. For that, our response will be done within a hour, and there should be a core team activation, IT leadership notification should be also given to them. Then you have third one, that is medium. Its level of that threat is medium. That comes under severity third. That is a policy violation with security impact. Also suspicious network activity, content malware incidents. For that, response will be done within the 4 hours. The primary analyst, जो प्राइमरी एनालिस्ट होता है उसको पकड़ना है, मतलब इन द सेंस उसको बिठाओ, उसको काम कराओ. ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हम रुका सकते हैं. फर्स्ट स्टेप वही है
जस्ट टू स्टॉप एवरीथिंग, जो अटैक है जितने से जल्दी हम स्टॉप कर सकते हैं वो स्टॉप करो. देन यू हैव फोर्थ वन दैट इज लो सेवरिटी. इट कुड बी प्रॉब्ली फॉल्स अलार्म, कभी कभी फॉल्स अलार्म बच जाते हैं सिस्टम्स में. ठीक है. देन यू हैव माइनर पॉलिसी वायलेशन, माइनर पॉलिसी वायलेशन पे हुआ कुछ. एंड थर्ड वन है लो इम्पैक्ट इवेंट्स. Response team should be response within 24 hours. There should be individual analyst. Standard documentation is required for that. Okay, समझ गए आपको what are the four levels of incident classification and how we can prioritize them. समझ गया सबको. क्वेश्चन पूछे फिर आपको ये अच्छे स्लाइड्स पे, और अनम्यूट करके बोलने के लिए बोलूं. Should I ask you the questions for this? ओके great. सो आपके लिए क्वेश्चन है, एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा. Just think like an employee receive a phishing email pretending to be from a company HR department. Okay, ये क्वेश्चन है, एक सिचुएशन है. ठीक है, सिचुएशन ऐसी है, एक एम्प्लॉय है जिसको एक फिशिंग ईमेल आता है. उसमें होता है कि एक वो जो ईमेल है कंपनी के HR डिपार्टमेंट से आया है. ठीक है, ये सिचुएशन है. देन व्हाट टाइप ऑफ इंसिडेंट इज दिस एंड व्हाई इट इज प्रायोरिटी. मैं आपको क्वेश्चन एक चैट बॉक्स में डालता हूँ. जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन टेल मी what type of incident is that, what type of priority we should have for that. It's quite easy question is. Unmute yourself as soon as possible. Can anyone tell? Higher priority severity. High priority तो नहीं बोल सकते हैं उससे. Yep, it's wrong. No worry. No worry. Still. Anyone? Any other? Any other? Unmute yourself. अगर तुम unmute करके बोलोगे और बेस्ट रहेगा. Okay, no worry. I'll just tell you. The type of the incident it will be the phishing, and priority will be medium if no one has clicked. अगर वो लिंक किसी ने क्लिक नहीं की होगी, so that will be a medium. We need to do within 4 hours. रिस्पॉन्स करना होगा हमें 4 hours के अंदर. एंड हाई इफ क्रेडेंशियल वाइज इंटर, अगर वो लिंक पे क्लिक वगैरह करके आगे की जो प्रोसेस होती है जो लिंक में बोला गया है फिशिंग में, तो वो करते हैं दैट इट विल बी हाई. मींस वी नीड टू रिस्पॉन्स विद इन 1 hour बाय पोर्टल. ओके, I'll just give second question. Second question is in your chat box. Just check it out. एक सिचुएशन है जहाँ पे कंपनी वेब सर्वर बिकम स्लो and unresponsive due to large number of requests. So for that, how will you classify and prioritize this? You can unmute yourself. आप आंसर बता सकते हैं.
So language barriers are there. You can tell your answers in Hindi, English, Marathi. If you want, then add any option. But not I can. इंग्लिश हिंदी मराठी में आप बोल सकते हो बता सकते हो समझ सकता अनम्यूट योरसेल्फ जो आंसर योर 10 seconds 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 okay so what type of attack that is can anyone tell me किस तरह का अटैक अनम्यूट करके बता दीजिए खुशी वैष्णवी अनम्यूट करके किस टाइप ऑफ अटैक what type of attack that is unmute yourself इसको मैं भूलता हूँ किसे सॉल्व करें can anyone tell me what type of attack that is can anyone no 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 so I'll just let you know that type of attack is DOS that we call as denial of service attack DOS attack priority level is high you were right Akushi he was right no it's DDoS I mean DOS not DDoS DOS attack okay it could be DOS or DDoS it's matter okay Kushi you want more question like this last question for this on your chat box what you want me to explain Vaishnavi okay explain to just let me know भाई जितना टाइम आप अगर टाइप करने में लगाओगे वो सेंड होगा फिर मैं पढ़ूंगा इट्स बेटर टू टेल बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ अनम्यूट करो जल्दी सॉल्व हो जाए because we have limited period of time for this session because I need to cover more than 10 slides now it's already half an hour anyone you have 5 seconds to answer 5 4 3 2 red Kushi nice medium what type of attack that is nice enough कौन सा type of attack है by the way can anyone tell me can anyone unauthorized threat unauthorized access attempt है वो. Unauthorized of access yep right Sunny exact word there is difference with unauthorized threats and unauthorized access इसलिए okay no we'll just go to the next तो सबको समझ आ गया होगा it is not a part of our syllabus for now okay so we are now next which one is it's unauthorized access attempt and just type here in the chat box for that answer yeah, this is the answer that is unauthorized access attempt and priority level is medium okay so yep, let's go to our next slide that is security operations centers we call as SOC it is a centralized faculty housing and information security team responsible for monitoring analyzing and responding to cyber security incidents on continuous basis तो एक तरीके से टीम होती है हाउस होता है उनका एक टीम होती है जहाँ पे वो सब मॉनिटर करते हैं एनालाइज करते हैं और जो साइबर सिक्योरिटी का जो इंसिडेंट हो रहा है उस पर रिस्पॉन्स करते हैं दैट इज नोन एज सॉक दैट इज सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स ठीक है फॉर दैट वी हैव सम एक सेकंड जस्ट
Okay, sorry for inconvenience. Okay, that's good. So there are core function for the security operation centers, that is continuous 24/7 and 365 days security monitoring should be done by them, and they should detect real time and real time detection for the threats and response immediately as per the classification we done. Okay. There should be a vulnerability assessment and management thoroughly, also threat intelligence gathering application. They should doing a threat intelligence gathering and information for that. Also should be done VAPT. VAPT जो हम बोलते हैं ना, vulnerability assessment management, that is known as a kind of penetration testing. मतलब टेस्ट करते रहना चाहिए उन्होंने कि सिस्टम्स को सब प्रॉपर ही आने में, जस्ट लाइक हम जैसे चेक करते हैं ना, देखो आप जब आप घर लॉक करते हो, राइट, घर लॉक करने के बाद एक बार जो लॉक होता है कुलूप जिसे हम बोलते हैं, आई मीन वो ताला एक बार खींच के देखते हैं ऐसा थोड़ा जोर से बोलना कि अब इट्स लॉक और नॉट, इट्स एनी इज देयर एनी फॉल्ट इन दैट. Exactly, they should also do a vulnerability assessment management for that and simplify security reporting and compliance support. That is, they should report all the security of that and do compliance support. Okay. Is there any doubt in this security operations centers? Did you get my point? Which doubt? Just let me know. Okay. So, yep, we'll be going towards next slide. That is SOC people, their process, and their technology. Okay. So first of all, we'll be going through. There are three types. First one is people. Second process. Third technology. Technology. Okay. So we'll be first going with the process. That is no. We'll go with Kalun versus Walker. We'll go first of technology. SOC tool stack. They use security information and event management for that. CM. SIM जिसे हम बोलते हैं. It's a vast syllabus, vast like content इसके लिए SIM के लिए. It's important for incident response team. They gather security information, event management. They also do a SOAR, that is security orchestration and spyware and automation responses. They also do endpoint detection responses. जो मैंने कल बताया था endpoint detection responses कैसे किए जाते हैं. They also perform a network security monitoring tools. They also use that. Then they have been going through threat intelligence platforms for that. Then we have next process. What the process for the procedure of SOC? Procedure क्या होती है? They have SOP. This is just standard operation procedure. जिसमें all types of rules and regulations have been mentioned and how and what and when to do the process. जो procedure follow करते हैं, ये उनके पास होता है standard operation procedure SOC. SOP हम बोलते हैं. उसमें दिया होता है. They need to respond to incident through playbooks. Escalate the escalation procedure. जितना वो प्रॉपरली प्रोसेस कर सकते हैं वो प्रॉपरली प्रोसेस किया जा सकता है. इसको बढ़ा भी सकते हैं प्रोसीजर को. इट्स डिपेंड ऑन probably them. Then we will go towards next, that is quality and assurance process. Means जो SOC होते हैं, they need to go through a quality assurance process also. And then they have the continuous improvement mechanism. They should always improve their mechanism. Then we have people as a SOC team. SOC team में कौन कैसा हो सकता है? We'll go toward that. सबसे पहले जो आते हैं वो होता है SOC मैनेजर. उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजी प्रोजेक्ट्स, ऑपरेशंस प्रॉपरली करना, जो स्ट्रेटेजी होती है वो. देन दे हैव बजट फॉर द टीम. उनका मिनिमम एक्सपीरियंस है 7+ years फॉर दैट. देन दे हैव टायर 1 एनालिस्ट. टायर 1 एनालिस्ट दे कुड हैव एक्सपीरियंस और probably they will fresher जो होते हैं, they have work for the op responsibility. They have that monitoring, dredge, initial response for their responsibility. Then we have tier 2 analyst. Their responsibilities are investigation and incident handling. They require minimum experience of 2 to 5 years for joining for this role as tier 2 analyst. Then we have next, that is tier 3 analyst. For this we have complex analysis and threat handling. Require 5+ years of experience with that job role. Then you have threat hunter, that is proactive threat identification team. Their responsibility is also the proactive threat identification. They require minimum 3+ years of
experience for that. Then we have IR specialist. For that, they require a 3+ years of experience, and their responsibilities are advanced incident response. मतलब जो एडवांस जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स होता है वो करो. आईआर मतलब इंसिडेंट रिस्पॉन्स स्पेशलिस्ट. ठीक है. And all comes under SOC branch. ठीक है. And this is the team of SOC team. किसी को डाउट है इस चीज में? इस स्लाइड में किसी को डाउट पूछ नहीं सकता हो, कुछ रिपीट चाहिए, you can go with that. Is there anything you want me to explain? SOAR. Okay, this SOAR, right? Now, I'll just tell you. It's a kind of technology or tool that we use, that is or that is used by a SOC team. Okay. जो SOAR होता है, so it's about a set of tools and technologies that allow security teams to collect data, automate responses, and contribute or workflows related to security teams. That means they have a set of tools होते हैं वो उसमें that allow security teams to collect data and automate responses. समझे? एक सिंपल वे में बोला जाए, वो एक सेट ऑफ टूल्स है एंड टेक्नोलॉजी है जो सिक्योरिटी टीम्स को हेल्प करती है डेटा कलेक्ट करने में, और जो रिस्पॉन्स आता है फ्रॉम इंसिडेंट्स उसको ऑटोमेट करने में, एंड हेल्प अस टू कोऑर्डिनेट द वर्कफ्लोज रिलेटेड टू सिक्योरिटी इंसिडेंट्स. समझे क्या होता है वो? जस्ट आई जस्ट गिव एग्जांपल फॉर दैट. समझ लो एक इंसिडेंट है, यूजर क्लिक अ फिशिंग लिंक. ठीक है. तो फिर हम सोर्स से क्या करें, SOAR से विल बी चेकिंग अप द डिटेक्ट द ईमेल. ठीक है. द सिस्टम डिटेक्ट द ईमेल, then automatically extract the sender URL and attachment, quarantine the email, block the sender's IP, notify the user and SOC team, open ticket and log action. मतलब है ऑटोमेटिकली जो चीज हो रही है, इंसिडेंट जो हो रहा है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करना, कैसे करना है, क्या करना है, कौन से टूल वहाँ पे यूज करेंगे, एनालिटिक्स एनालिसिस, वो SOAR मैटर करता है. डिड यू गॉट? Yep, great. So we'll be going to our next, that is SIEM implementation management. ये होता क्या है बेसिकली? ठीक है, मैं बोलता हूँ. SIEM is the part of our implementation and management. SIEM stands for a thing that is structured and simplified overview of SIEM. There are some core capabilities that need to be done. That is, first is data collection and aggregation. Whereas in that we gather logs from multiple sources like firewalls होते हैं, हमारे servers होते हैं, endpoints systems होते हैं, उनमें से हम logs gather करेंगे and normalize and irk them, मतलब कि analyze करेंगे properly, या फिर हम बोल सकते हैं उनको properly inventory management करेंगे. Then we have second one, that is analyze collection. That is कि link events होते हैं, detect करते हो patterns को, identify anomalies and coherent threats across system. Then you have third, that is alerting and notification. That means कि it's trigger alert based on the collection rules. जो rules हमने decide किए होते हैं collection में, और उसके हिसाब से अगर चीज नहीं चल रही है, so it's detect and alert और trigger करता है alerts को and notify to appropriate teams. Then you have fourth one, that is reporting and dashboard. That means a creative visual dashboard and generate reports for compliances. मतलब कि एक विजुअल डैशबोर्ड क्रिएट करना पड़ता है, उस पर सब रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं कंप्लायंस के, यानी कि PCI DSS होते हैं जो हमने पढ़ा था, HIPAA GDPR वगैरह जो कंप्लायंस है उसके हिसाब से बनते हैं उस. ठीक है. देन वी हैव SIEM इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन कैसा किया जाता है? इम्प्लीमेंटेशन कुछ है. फर्स्ट वन, दैट इज डिफाइन क्लियर यूज केसेस. Then we have second, that is identify log sources, plan architecture, phase implementation. Implementation में start with critical assets and expand it. मतलब जो critical assets होते हैं उनसे start किया जाते हैं. Then we have first implementation के बाद आता है हमारा tune collection rules for reducing noise, prioritizing
threats and avoid false positives. False positive का मैंने एग्जांपल दे दिया था आपको, ऐसा होता है क्या होता है. Then we have performance monitoring. It helps us to track the log, investigate that. In that log, we could be probably getting the information for the CPU, GPU, memory usage, and RAM and ROM, and everything. Okay. Then we have common sense challenges and solutions. SIM symbol terms. Okay. For that, we have first alert fatigue, the cause of the too many irrelevant alerts. तब अगर irrelevant alerts आ रहे हैं बहुत सारे, उसके लिए होता है, उसके लिए सोल्यूशन है ट्यून रूल्स वर्क करो, यूज करो. यानी ऑटोमेटेड लो लेवल टास्क, जो लो लेवल टास्क होते हैं उसको ऑटोमेट किया जाए. देन वी हैव फॉल्स पॉजिटिव मतलब क्या, नॉर्मल बिहेवियर मिसक्लासिफाइड और मैलिशियस जो होते हैं. देन वी हैव डेटा क्वालिटी मतलब क्या, मिसिंग लॉग्स और इनकरेक्ट फॉर्मेट्स. तब जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, देयर शुड बी अ स्पेसिफिक फॉर्मेट एज पर द compliances, regulatory compliances, and that should be a valid, and monitoring and data analysis should be done in this purpose. Okay, did you get my point? कुछ डाउट है इसमें? मतलब क्या क्या नहीं समझा था? मतलब ये स्लाइड नहीं समझिए कुछ भी, ये स्लाइड एडीएचयूसी, एडीएचयूसी मतलब समझे नहीं. ऐसा SIM का कंसेप्ट, सिंपल वे में बोल दो. SIEM क्या होता है? इट्स सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट. मतलब कि जो सिक्योरिटी जो होती है इंफॉर्मेशन की वो, और उसके जो इवेंट्स होते हैं, ट्रिगर जो होते हैं मैनेजमेंट. जैसे हमने यहाँ पे ऊपर देखा था, यहाँ पे जो शॉक होते हैं, हाउ दे रिस्पॉन्स, उनकी रिस्पॉन्स के हिसाब से जो टीम बनाई जाती है इस क्लासिफाई, जो हमने ऊपर देखा मैनेजर वगैरह, तो वो कैसे वर्क करते हैं और उनको कैसे डेटा समझता है कि यप समथिंग, कुछ ना कुछ रॉन्ग हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है उसके लिए. तो उनके जो कोर कैपेबिलिटीज होती है, जो उनका फंक्शनैलिटीज क्या क्या है. सबसे पहले होता है डेटा कलेक्शन, मतलब कि डेटा कलेक्ट करना. और डेटा कलेक्ट करने में हम क्या कलेक्ट करते हैं, लॉग्स कलेक्ट करते हैं, जो फ्रेश डेटा होता है वो कलेक्ट करते हैं. देन वी हैव एनालिसिस एंड कलेक्शन, मतलब कि क्या, एनालाइज करो सब डेटा को जो हमने कलेक्ट किया है, मॉनिटर किया है सबको वो. देन यू हैव अलर्टिंग एंड नोटिफिकेशन, जो चीज हो रही है उसके सब कलेक्ट करने के बाद, एनालाइज करने के बाद उसके ऊपर जो आउटपुट देंगे एज अलर्टिंग. अलर्ट किसको करेंगे फिर, सॉक टीम को. क्यों, क्योंकि वही इस पे रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि ये है इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, राइट. तो उनको हम अलर्ट करेंगे इस चीज पे एंड नोटिफाई करेंगे स्पेसिफाइड टीम को. देन वे रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्ड, और जब सब चीज हो जाएगी उसके ऊपर ऊपर हम एक रिपोर्ट बनाएंगे. एंड फॉर दैट रिपोर्ट वी हैव स्पेसिफाइड डैशबोर्ड फॉर दैट. वर्चुअल डैशबोर्ड हो सकता है या एनीथिंग एज पर द कंपनी रेगुलेशन कंप्लायंसेस. वो डैशबोर्ड पे हम रिपोर्ट सर्च करेंगे, या हम बोल सकते हैं फाइल करेंगे, प्रीवियस हो या फिर फ्यूचर वाला हो या प्रेजेंट वाला, उसके हिसाब से. समझ गया क्या होता है कोर कैपेबिलिटीज, जिसको हम फंक्शंस बोल सकते हैं सीएम का. सीएम मतलब फिर से बोलते हो, SIM स्टैंड फॉर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट. डिड यू गेट टिल दिस? मैं आगे बोलता हूँ. हाँ, तो उसके बाद होता है इम्प्लीमेंटेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं बेस्टली. सो सबसे पहला है डेवलप क्लियर यूज केस बिफोर इम्प्लीमेंटेशन. यानी कि क्लियर यूज केस जो है, मतलब अपना काम क्या है उस पर वो प्रॉपरली डिफाइन करके उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट. देन वी हैव आइडेंटिफाई और रिलेवेंट लॉक सोर्स, जो जो लॉक सोर्स होते हैं उनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करो, डिजाइन करो प्रॉपरली उसके लिए आर्किटेक्चर, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो जो भी प्रॉपरली सॉल्यूशन है. एंड उसके बाद क्रिएट एंड ट्यून कॉलेशन रूल्स, मतलब कि एक सिंपल में बोला रूल्स क्रिएट करो उसके. देन वी हैव टू मॉनिटर इट. ओके, समझ गया इंप्लीमेंटेशन क्या हो सकती है फॉर डूइंग ए बेस्ट प्रैक्टिसेस.
उसके बाद एक कॉमन SIEM जो होता है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट में एक चैलेंजेस होते हैं जो होते हैं अलर्ट फैटिग। मतलब कि एक बार बार अलर्ट्स आना, वो अलर्ट फैटिग में माना जाता है। देन ये फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव मतलब क्या है, लेजिटिमेट एक्टिविटीज ट्रिगरिंग अलर्ट्स, मतलब प्रॉपर है, सब प्रॉपर चल रहा है, स्टिल वो अलार्म दे रहा है कुछ ना कुछ गलत खबर, यप एवरीथिंग इज गोइंग वेल स्टिल ऑल्सो, उससे हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। देन है डेटा क्वालिटी। डेटा क्वालिटी मतलब क्या, जो हम डेटा ओवरऑल कलेक्ट कर रहे हैं, इट शुड नॉट बी टेम्पर्ड, मैनिपुलेट एंड मिसिंग, वो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वैलिडेट एंड मॉनिटर्ड थ्रू सॉफ्ट टीम। समझ गए क्या होता है CM का प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन मैनेज कैसे किया जाता है उसे। हाँ, ओके, सो विल गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज थ्रेट इंटेलिजेंट इंटीग्रेशन। थ्रेट्स में इंटेलिजेंस कैसे वर्क करता है और उसका इंटीग्रेट हम कैसे कर सकते हैं। सो देर आर नियरली 4 to 5 टाइप्स ऑफ थ्रेड, मतलब ये बहुत कम है, there are maximum. We'll just getting to know in our this session, and we'll be learning only 4 types of threats. सबसे पहले है स्ट्रेटेजिकल इंटेलिजेंस। थ्रेट इंटेलिजेंस में सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस। इट्स फॉर एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। जो एक हायर लेवल अथॉरिटी होती है उनके पास होता है, जो उसमें होता है हाई लेवल थ्रेट्स जो हम बोलते हैं, वो उसमें आते हैं। ठीक है, एंड देयर वर्क इज टू एग्जीक्यूट रिपोर्ट्स। जो रिपोर्ट्स होते हैं एग्जीक्यूटिव्स के, वो करो, एंड ब्रीफिंग द रिस्क एंड रिस्क असेसमेंट करो। देन यू टैक्टिकल इंटेलिजेंस। टैक्टिकल इंटेलिजेंस मतलब वो जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होते हैं, IR टीम होती है। IR टीम मतलब कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। फॉर दैट देयर कंटेंट इज टू एडवर्साइज TTPS अटैक की मेथोडोलॉजी जो होती है, मतलब किस तरीके से अटैक हुआ है, मेथोडोलॉजीज वो देखना। देन यू थ्रेट एक्टर प्रोफाइल्स, मतलब किस तरीके के थ्रेट्स है, तो प्रॉपरली इंफॉर्मेशन गैदर करके वो एनालाइज। उसके जो फॉर्मेट है टेक्निकल रिपोर्ट्स होता है, उसमें कैंपेन एनालिसिस होती है। देन यू थर्ड वन दैट इज ऑपरेशनल इंटेलिजेंस। देयर ऑडियंस इज सॉक, मतलब जो यूज किया जाता है सॉक टीम से यूज किया जाता है। एंड थ्रेट एंटर्स जो हमने देखा था वहाँ पे बेसिकली। एंड देयर कंटेंट इज फॉर करंट कैंपेन्स, emerging threats, attack indicators. And format is for alerts, bulletin, IOC feeds, etc. And our fourth one is technical intelligence. टेक्निकल इंटेलिजेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो आते हैं वो होते हैं सिक्योरिटी टूल्स, जो हमने पहले देखा था। सिक्योरिटी टूल्स याद आए कुछ सिक्योरिटी टूल्स हम क्यों यूज करते हैं, अभी प्रॉपरली देखते हैं। जो मैंने यहाँ पे बोला जाए टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट टूल स्टैक, वो टेक्निकल इंटेलिजेंस में आते हैं। जहाँ पे हम कंटेंट जैसे कि वेरीफाई करते हैं, IP एड्रेस वेरीफाई करना, डोमेन नेम्स देखना, फाइल एक्सेस प्रॉपर है या नहीं है, वो देखना। 11 रूल्स होते हैं वहाँ पे। 11 रूल्स आर द काइंड ऑफ अ थिंग, बहुत बड़ा चीज है वो। जस्ट नॉट लेट दिस इन दिस सेशन, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है इसलिए। उसका जो फॉर्मेट होता है वो IOC फीड्स में आता है। स्ट्रैक्स TXI वो एक काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है जो API फीड्स में आता है। ठीक है, समझ गया सबको यहाँ तक। इस टाइप के ऑफ थ्रेट इंटेलिजेंस होते हैं, उसके वर्किंग स्ट्रेटेजिकल एंड ओवरऑल ऑडियंस को होती है उसकी। इज देयर एनी डाउट? देन वी हैव इंटेलिजेंस सोर्स। इंटेलिजेंस सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, पहले उसका क्या, कमर्शियल। कमर्शियल में फायर आई हो गया, क्लाउड स्ट्राइक, रिकॉर्ड फ्यूचर्स, ये होते हैं उसमें। देन वी हैव गवर्नमेंट जो होता है US सर्ट सर्टिफाइड। API का डेटाबेस हो गया, DX का डेटाबेस, इंटरनेशनल सर्च का डेटाबेस। इंटेलिजेंस सोर्स बात कर रहा हूँ मैं, हम कहाँ कहाँ से हमें इंटेलिजेंस सोर्स। देन वी हैव ओपन सोर्स, दैट इज सिक्योरिटी ब्लॉग्स, रिसर्च पेपर्स, ओशन। अगर हमने किया तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल किट होता है ओशन। देन वी हैव इंडस्ट्री शेयरिंग। डज एनीवन नो हियर ओशन क्या होता है? OSINT, ओशन। कौन बोल सकता है ये वर्ड का मीनिंग? एनीवन? No, it's a kind of a open source intelligence tool
जो मतलब एक ऐसे समझ लो जो ओपन सोर्स हमें मिलता है, प्रोबेबली हम यूज करते हैं शोडाउन। आई जस्ट शो यू वन शोडाउन क्या होता है। ओके, ये देखो, इट्स काइंड ऑफ अ सर्च इंजन। ये सर्च इंजन शोडाउन आयो। यहाँ पे हमें हर तरीके से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। देखो, अगर मैंने डाला कि सीसीटीवी, यहाँ पर जस्ट काइंड ऑफ सीसीटीवी, तो यहाँ पे जो ओपन सोर्स है सीसीटीवी है वो मिलेंगे। तो सर जस्ट शो यू वंस क्वेश्चन के सीरियल है। होप सो इट्स वर्किंग फाइन। इट्स नॉट वर्किंग। ओके, सो अगर हमने देखा यहाँ पे हमें सीसीटीवी, अगर हमने डाला तो सीसीटीवी के आईपीज आ जाते हैं। इफ वी एंटर हियर डीवीआर, पार्ट ऑफ सीसीटीवी ये आ जाते हैं। अगर हमने डीडोस डाला, ये डीवीआर आ गया, इंडेक्स आ गया उसका, ये लॉग इन पेज आ गया। इसके पासवर्ड्स वगैरह डाल के तो वो प्रोसेस होती है। देन इफ वी ऐड डॉस टू अंडरस्टैंड समथिंग, तो डॉस के बारे में मिल जाएगा। अगर हमने यहाँ पे स्पेयर डाला, then we'll get some information regarding सिंपल स्पेयर। मतलब एक ओपन सोर्स एक टूल होता है। सिंपल स्पेयर के बारे में तो वो नहीं बोल रहे हैं कुछ, स्पेले वगैरह इन मैच होंगे। सो इट्स अ सोर्स फ्रॉम दैट वी कैन डू ओशन। मतलब ओशन सोर्स जो होता है ओपन सोर्स बोला जाता है उसे। ओपनली कोई भी किसी भी तरीके का डेटा एक्सेस कर सकता है यहाँ से, तो उससे हम बोलते हैं ओशन इज अ टेक्निक। और जो शोड आउट बोला था एक काइंड ऑफ टूल है जो हम यूज करते हैं ओशन परफॉर्म करके। समझ गए क्या होता है ओशन ओपन सोर्स उसमें। एक और एक है जीडीए, एच बी हम बोलते हैं, एक्सप्लॉइट डेटाबेस होता है उसमें। इसे भी हम बोलते हैं, ये भी काइंड ऑफ ओपन सोर्स है। इसमें अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉइट्स होते हैं कि कौन कौन से एक्सप्लॉइट आए, कौन कौन से नहीं आए। देन पेपर्स, जो पेपर्स ओपनली सर्च होते हैं उसमें विजुअल लैब्स होते हैं। यहाँ पे डीएलआर क्या है, एक्सवाइजेड, ये काइंड ऑफ टूल्स है जो क्वेश्चन सर्चिंग में यूज करते हैं ओपन सोर्स देखने के लिए फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस। Then your industry sharing, that is ISAC. ISAC is kind of a certification हम बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल ISO है। It's come under industry group and peer organization. It's also the part of intelligence source from that. You can check it out. इसका अलग अलग स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो क्या होता है किस वक्त। बाय द वे कल मैंने एक असाइनमेंट दिया था, इट्स रिगार्डिंग डिस्कॉर्ड। सो कोई भी एक बंदा बताओ मुझे डिस्कॉर्ड के बारे में आपको क्या समझ। कैन एनीवन? एनीवन, कोई बोल सकता है डिस्कॉर्ड के बारे में जो मैंने कल पूछा था? एनीवन फ्रॉम दिस? कैन एनीवन? ओके, नो, देखना आप स्पीड से, मैं तो खुद बोल रही हूँ। देन वी हैव सम एप्लीकेशन इन सिक्योरिटी ऑफ ऑपरेशंस। जो एप्लीकेशंस होते हैं जैसे मैंने बताया एसआईएम होते हैं, एरर हंटिंग होती है उसमें। देन वी आल्सो हैव इंसिडेंट रिस्पांस इन दैट। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है थ्रेड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में? Anyone? किसी को अच्छा कुछ तो आपको डाउट है टीटीपी हंटिंग? टीटीपी हंटिंग जो हमने देखा था लास्ट की एक्टिवली
चेक करते रहो कि हमारे सिस्टम में कुछ वर्नेबिलिटी है या नहीं है, जिससे हम बोलते हैं टैक्टिक्स, टेक्निक, प्रोसीजर। एक टैक्टिक होती है जिससे हम सर्च करेंगे, एक टेक्निक होते हैं जिससे हम डिस मतलब एक टैक्टिक, टेक्निक, प्रोसीजर होती है, ऐसा समझ लो, टीटीपी। ठीक है। आई जस्ट शेयर यू वन वेबसाइट, एक वेबसाइट बोलता हूँ तुम्हें, फ्रेमवर्क है मस्त सा। आप वहाँ पे ओपन सोर्स की सब चीज समझ सकते हो, जो MTRE, मीटर इरिटेंसी के, समझिए आपको टीटीपी हंटिंग क्या होती है। मतलब एक काइंड ऑफ एक सर्च करते रहना सिस्टम में कुछ दिक्कत है या नहीं दिक्कत है, इन द सेंस ऑफ हैकर के एक पर्सपेक्टिव है इसमें। ओके, आई विल जस्ट शेयर यू वन थिंग। ठीक है, देखो स्क्रीन देखो एक बार, मैंने चैट बॉक्स में ये सेंड कर दिए, पिन कर देता हूँ। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट जो हमें कंप्लीट सिखा देती है कैसा होता है क्या होता है, जैसा अभी हमने देखा यहाँ पे। जस्ट ओके, विल जस्ट चेक इन वाईफाई नेटवर्क, नॉर्मल है, सबको इजी जाएगा समझ। अभी हमने देखा देखा था प्रिविलेज एक्सक्लेशन, प्रिविलेज एस्केलेशन में हिस्सा लिया होता है हमारा अकाउंट मैनिपुलेशन। मतलब क्या, अकाउंट मैनिपुलेशन कैसा होता है, उसके प्रोसीजर एग्जांपल्स क्या है। ठीक है, मिटिगेशन उसके हर एक टाइप्स ऑफ फाइल्स होती है। मतलब ये बेस्ट वेबसाइट है टू लर्न, टू अंडरस्टैंड। एंड इनके पास उनके खुद के रिसर्च पेपर्स भी हैं। देन वी आल्सो फिशिंग, जैसे हम बोलते हैं फिशिंग में, फिर इसमें देखो स्पेयर फिशिंग है, स्पेयर वॉइस फिशिंग है, राइट। अगर हम देखेंगे स्पेयर फिशिंग के लिंक्स, सो स्पेयर फिशिंग के लिंक्स ऐसा है, ये आईडी है उसकी, उसका नाम। यू जस्ट नीड टू गो थ्रू दिस वेबसाइट, मैंने उसका लिंक दे दिया है चैट बॉक्स में। जाओ देखो, एक्सप्लोर करो, इट्स बेस्ट वेबसाइट। हम भी यूज करते हैं। ठीक है, ये मोबाइल में है, मोबाइल टेक्निक्स क्या क्या हो सकती है। देन योर एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस में XYZ जो होती है, बाईपासिंग यूजर कंट्रोल कैसे किया जाता है, सुडो और सुडो कैचिंग का कैसे बाईपास किया जाता है, टीसीएस मैनिपुलेशन। इट्स बेस्ट वेबसाइट, कैन गो थ्रू इट, मैंने भेज दिया। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट हो यू कैन आस्क मी ऑन लिंक्डइन एंड ओपन। ठीक है, अभी तक किसी को कुछ डाउट है इसमें होगा तो लेट मी ऑन chat box. Then we have incident risk detection analysis. In that, we'll be getting to know about how we can detect the incident, analyze it. Then we have analytics process, जिसमें एनालिसिस की प्रोसीजर होती है। सबसे पहले प्रोसीजर तो इवेंट के ट्राई के, मतलब सबसे पहले जो असेसमेंट, इनिशियल असेसमेंट किया जा सकता है, करो, किया जा सकता नहीं, करना चाहिए, और वेरिएशन लो सिस्टम से। Then we have priority assessment and classification. Guys, you guys are getting so old है my English, मतलब थोड़ा इंग्लिश से थोड़ा टफ हो रहा है कि आपको समझने के लिए, जस्ट लेट मी नो। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूंगा हिंदी और मराठी में बताने के लिए, जस्ट लेट मी नो। शायद से मैं, ओके ओके ओके। सो थिंग इज दैट फर्स्ट वन इज इवेंट ट्रैक, जिसमें हम इनिशियल असेसमेंट वैलिडेशन चेक करते हैं, और उस पे असाइनमेंट जो होता है वो प्रायोरिटी बेसिस पे एंड क्लासिफिकेशन के हिसाब से किया जाता है। वी आर चेकिंग गाइस, फिर से बोल रहा हूँ ध्यान से देखना, वी आर डूइंग इंसिडेंट डिटेक्शन थ्रू एनालिसिस प्रोसेस। एनालिसिस प्रोसेस क्या होती है इंसिडेंट डिटेक्शन में, तो कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं। देन वी आर टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल व्यू में हम एनालिसिस करना पड़ता है आफ्टर इवेंट ट्रैक, दैट इज कलेक्टिंग द डेटा एंड गैदरिंग द एविडेंस। एविडेंस जमा करो एंड डेटा जो होता है कलेक्ट करो। डेटा कैन बी लॉग फाइल्स, एनीथिंग, जो भी हो डेटा, या करप्टेड फाइल्स होती है, तो मोड ऑफ फॉरेंसिक IBIPT, दैट इज वर्नेट असेसमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग। और उसमें टेक्निकल में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है हमारा रूट कॉज डिटर्मिनेशन। मतलब जो किस के वजह से हुआ है, जो रूट कॉज है वो इंसिडेंट का, जिसके कारण इंसिडेंट हुआ है, इम्पैक्ट हमारे सिस्टम पे हुआ है, वो रूट कॉज ढूंढना टेक्निकल एनालिसिस के प्रोसेस में आता है। देन यू है इम्पैक्ट असेसमेंट, जो इम्पैक्ट हुआ है उसका असेसमेंट करो, मतलब क्या क्या हमारा नुकसान हुआ, क्या क्या चीज निगेटिवली इम्पैक्ट हुए हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे, वो इम्पैक्ट के हमें असेसमेंट करना होता है। फॉर दैट वी हैव सिस्टम एंड डेटा इम्पैक्ट इवैल्यूएशन,
बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस में हमारा आता है कॉस्ट इम्पैक्ट, टेक्निकल कॉस्ट इम्पैक्ट एंड ओवरऑल रिडंडेंसी फॉर दैट। एंड थर्ड में इज रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस असेसमेंट, मतलब जो हमारे इम्पैक्ट हुआ था कॉज ऑफ इंसिडेंट, उसके वजह से हमारे ऊपर क्या रेगुलेटरी कंप्लेक्सेस के इफेक्ट हो सकते हैं, वो हमें देखने पड़ते हैं इम्पैक्ट असेसमेंट। सबको समझ आ गया एनालिसिस प्रोसेस क्या क्या होती है? देयर इज 3 स्टेप: इवेंट, टेक्निकल एंड इम्पैक्ट। एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? जस्ट लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। देयर आर सम चैलेंजेस व्हाइल एनालाइसिस। जब एनालाइज करते हैं कुछ ना कुछ दिक्कतें वगैरह चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। और फर्स्ट वन इज डेटा वॉल्यूम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जो हमारा डेटा है उसका वॉल्यूम, या हम बोल सकते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्योंकि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डेटा कंसिडर्ड ओवर देयर। देन यू आर अलर्ट फैटिग एंड प्रायोरिटाइजेशन, जो मैंने ऊपर होता है अलर्ट फैटिग एंड प्रायोरिटाइजेशन शुड बी डन प्रॉपर्ली। देन यू आर एनालिटिकल गैप्स, टाइम प्रेशर होता है, रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स होते हैं। कंस्ट्रेंट्स मतलब रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट, मतलब एक रिसोर्स को हम लिमिटेडली यूज कर सकते हैं प्रॉपर्ली। ऐसा नहीं कि है तो यूज करते रहो करते रहो करते रहो, क्योंकि रिसोर्स आर द थिंग दैट कैन बी सप्रेस्ड और गेट ओवर। सो विल सी डिटेक्शन स्ट्रैटेजीज। डिटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या है? सबसे पहले सिग्नेचर बेस। सिग्नेचर बेस मैंने बोला था, देयर इज अ सिग्नेचर फॉर एवरीथिंग। इफ यू आर सेंडिंग अ फाइल, इट कंटेन्स अ सिग्नेचर। वो सिग्नेचर वेरीफाई होनी चाहिए। देन एनोमली बेस्ड, दैट इज आइडेंटिफाई डेविएशन फ्रॉम बेसलाइन बिहेवियर। जो बिहेवियर बेस्ड एनालिसिस करना होता है, दैट इज द काइंड ऑफ अननोन थ्रेट्स अडेप्ट टू एनवायरमेंट, फॉल्स पॉजिटिव रेट्स उसमें बढ़ जाते हैं। ठीक है, एनोमली बेस्ड। देन वी हैव बिहेवियर एनालिसिस, बिहेवियर की सबसे एनालिसिस करो, जो मैंने कल ही बोला था। देन वी हैव थ्रेट हंटिंग। थ्रेट हंटिंग जो मैंने अभी बोला था, टीटीसी, दैट इज टैक्टिकल टेक्निक्स एंड करस्पॉन्डेंस उसमें होता है। फॉर एनालिसिंग थ्रेट हंटिंग करते रहो प्रॉपरली, मॉनिटर करते रहो, तभी हमें थ्रेट हंटिंग मिल पाए। समझ गया ये स्लाइड? किसी को कुछ दिक्कत है? Does anyone have any doubt on this slide? No, no. No. Okay, so our next topic is post incident activities. अब ये पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटीज होते कैसे? इसमें सबसे पहला होता है लेसन लर्न प्रोसेस। इसमें सबसे पहला कंडक्ट अ लेसन लर्निंग मीटिंग, मतलब जो जो हमने सीखा है वो इंसिडेंट में, वो पहले समझो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है वो। उसके बाद रिव्यू रिस्पॉन्स इफेक्टिवनेस, मतलब जो हमने रिस्पॉन्स किया था उसके ऊपर रिव्यू, तो हमने जो रिस्पॉन्स दिया था उसमें वो प्रॉपर था, क्या क्या गलतियां उसमें थी, क्या क्या नहीं थी, वो प्रॉपरली देखना। देन वी इम्प्लीमेंट इम्प्रूवमेंट्स, अभी हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो इम्प्लीमेंट करना। देन वी डॉक्यूमेंट एंड शेयर लेसन्स, उसके बाद हर चीज होने के बाद वी नीड टू क्रिएट, और वी कैन से वी नीड टू हैव अ रिपोर्ट्स फाइल दैट विल बी इन आवर मोबाइल डेटाबेस ट्रांसमिशन एंड एनीथिंग। हर एक कंपनी का अलग अलग डैशबोर्ड होता है, तो वहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। दैट विल बी प्रोबेबली लॉग फाइल्स, एविडेंस, एक्चुअल रिपोर्ट, मल्टीप्लाइड रिपोर्ट्स होते हैं उसमें। ओके, समझ गया सबको पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटीज क्या होती है, कैसे होती है? जब सो विल बी गेटिंग टू नो इंसिडेंट डॉक्यूमेंटेशन। जो इंसिडेंट होता है उसका डॉक्यूमेंटेशन किससे बनाया जाता है? सो सबसे पहले हमें लिखना होता है एग्जीक्यूटिव समरी, प्रॉपरली समरी लिखनी होती है वहाँ पे, जहाँ पे हाई लेवल इंसिडेंट ओवरव्यू और लीडरशिप विद की फेस एंड बिजनेस इम्पैक्ट, यानी कि क्यों और कैसे हुआ था उसका ओवरव्यू। ठीक है, कैसे हमें पता चला था वो सीन, और उसके बाद उसमें की फैक्ट्स क्या थे, और उसके ऊपर हमें इम्पैक्ट क्या हुआ ऑर्गेनाइजेशन पे या बिजनेस पे, वो हमें पता। देन योर टेक्निकल डिटेल्स, मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निकल एनालिसिस इंक्लूडिंग अटैक वेक्टर्स एंड एविडेंस एंड टाइम, मतलब वहाँ पे इंसिडेंट जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं
उसमें हमें बताना होता है कि क्या क्या हमने एनालिसिस किया है, क्या अटैक वेक्टर्स थे। अटैक वेक्टर्स मीन्स ऐसा समझो जैसे हमारा एक डीडोस हुआ, इट्स अटैक वेक्टर फॉर अस। अनऑथराइज लॉगिन्स, ठीक है, मॉलिशियस गेन ऑथराइज एक्सेस, वो हमारा अटैक वेक्टर्स होता है, ठीक है। उसके बाद टाइमलाइन उसमें दी जाती है, देन रिस्पॉन्स एक्शंस, मतलब ये दो चीज होने के बाद हमने क्या रिस्पॉन्स दिया एज अ फ्रॉम ऑफ द सॉक टीम, हमने क्या किया है वो चीज के लिए, क्या हमने बेस्ट परफॉर्म किया हमारी साइड से एज अ इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, वो हमें डॉक्यूमेंटेशन में देना होता है। इट कंटेन्स इटरेशन एंड रिकवरी एक्टिविटीज ऑल्सो, जो हमने रिकवर किया है, क्या क्या हमने रूप आया हुआ है वो। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट जो होता है रिकमेंडेशन, क्या क्या हम रिकमेंड कर सकते हैं सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने। दैट्स इट। समझ गए आपको पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटीज कैसे की जाती है, क्या क्या उसमें होता है। इट्स काइंड ऑफ, हाँ यहाँ पे ओके, जो इट्स रेफर्स टू कंप्लीट एंड परमानेंट एलिमिनेशन ऑफ समथिंग, मतलब जो आपने कंप्लीट या एलिमिनेट जो करते हैं आप थ्रेड्स को, उसका मतलब होता है इटरेशन, ठीक है। जस्ट समझो एक आपके ऑर्गेनाइजेशन पे एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था, वो सब आपने रिस्पॉन्स कर दिया, रिस्पॉन्स करने बाद वो रॅन्समवेअर अटॅक पूर्ण न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब सगळ्या गोष्टी ते संपवून टाकलं त्यावेळी, आणि तुमच्या सिस्टमवर काहीच आता थ्रेट्स नाहीये, त्याला म्हणतात आपण डिटेक्शन, ठीक आहे. ओके, इज एनी अदर डाउट? Got it? Okay. So from day 1 to day 6, we had completed our cybersecurity foundation journey for a 1 week training that was online connected by Simply Square. आतापर्यंत आपण जे पण शिकलो यामध्ये तुम्हाला काही डाऊट आहे, काही विचारायचं आहे, यू कॅन अनम्यूट युअर सेल्फ, राईट इट डाऊन ऑन द चॅट बॉक्स, इन द चॅट बॉक्स, जस्ट आन्सर. कोणाला काही डाऊट आहे? ओके. So on first day, we have learned about cybersecurity fundamental and threat landscape. On day 2, we have learned about network security infrastructure protection. डे 3 पे हमने पढ़ा था malware, social engineering and human factors क्या क्या होते हैं. On day 4, we have learned about data protection, privacy कैसे हम डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, privacy क्या क्या measures होते हैं. On day 5, we have learned about IAM, that is identity management and access control, and the privileges management system. On day 6, we have learned about incident response and security operations. उसमें बहुत सारे अलग अलग चीज पढ़ी हमने. In this whole 1 week, we have achieved 14 hours of training. मीन्स हमने 14 hours of training की है by me as a lead cyber security trainer, internship trainer, जिसमें आपको 6 असाइनमेंट्स दिए हुए हैं. अगर आपको कुछ डाउट है then you can contact the support team. And in this week 14 hours में हमने टोटल 75 प्लस कंसेप्ट सीखे हैं. ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? You can ask your doubt. So it's end of our training session. I am Himanshu Patil, your cybersecurity internship specialist and lead internship mentor for this program. With me, I was having Pawan sir. He is a CEO of Simply Square Technologies and a technical mentor for your internship. I am available for your technical questions, skill development, and day-to-day guidance. You can simply do a mail
on that, himanshu@simplysquare.in. Else you can contact me on my LinkedIn. LinkedIn है Himanshu Patil 01. Okay. Or for any other support from a Simply Square, you can contact Pawan sir, or his contact is General Program Support Manager. Here, contact is. We also have two training session, training location center. First one is at Pune and second one is at Jalgaon. Thank you everyone for joining this session. We have came to across many of the things. बहुत सारी चीजें हमने सीखी है यहाँ. बहुत अलग अलग तरीके से हमने एक इंसिडेंट्स देखे, उसके ऊपर रिस्पॉन्सेस देखे, अटैक्स देखा, अटैक वेक्टर्स देखे, एंड मेनी मोर. इट्स जस्ट द फाउंडेशन पार्ट था, इसमें बहुत ज्यादा चीज होती है. फॉर टुडे आई एम साइनिंग ऑफ. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू.